پہلے حالات تو بالکل تنگ تھے, اب بہتری آ ہی رہی ہے, تقریباً تھوڑی تھوڑی بہتری تو نظر آئی ہے. کوئی بھی نہیں صحیح, سارے چور نے, سارے چور ہیں. غریب بندے کا کوئی نہیں گا. اچھا, وہ صاحب تو سوال صبح سے نکلا ہوا ہوں تو میں نے 600 روپیہ پکڑا, 400 روپے یہ رکھا کہ دیہڑی ہے. گیس اتنی مہنگی کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان بٹ. ناظرین, موجودہ پاکستان کی اتحادی حکومت پاکستان میں معاشی استحکام لے آنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے, لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا. ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے تو اپنی بلند ترین سطح پر ہے. اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی سنگل ڈیجٹس میں آ چکی ہے, اور اگر بات کی جائے شرح سود کی تو وہ بھی مسلسل کم ہو رہی ہے. جو حکومت ہے وہ اس بات پر تو پلس پوائنٹ میں ہے کہ معاشی استحکام لے کر آ رہی ہے, لیکن جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے حکومت کو وہ ہے سیاسی استحکام. کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں بیٹھے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جب چاہے ایک کال دے کر پورا ملک بند کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جب چاہے وفاق پر حملہ کرتے ہیں اور ملک کو بند کر دیا جاتا ہے. حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کی تو بات ایک طرف, لیکن حکومت کو اس محاذ پر بھی لڑائی کرنا ہوگی, اس پر بھی استحکام لانا ہوگا, کیونکہ سیاسی استحکام آئے گا تو ہی ملک معاشی ترقی کر سکے گا. یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. معاشی استحکام تو آ رہا ہے, سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, باز گشت ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی. کیا مذاکرات سے یہ ملک ٹھیک ہو سکے گا؟ اور یہ جو تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں تمام عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, اس کا کیا قصور ہے اور ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ ہم جانیں گے آج اپنی عوام سے کہ عوام کیا بیانیہ رکھتی ہے کہ آیا ملک بند ہو جائے تو پھر ملک چلے گا, یا پھر ملک میں معاشی استحکام آئے اور اقدامات کیے جائیں, انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں تو پھر ملک آگے بڑھے گا. آئیے جانتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. السلام علیکم بھائی, شاپنگ کر کے آئے ہیں آپ لوگ, مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک سال میں جو آپ کی بائنگ پاور ہے وہ بہتر ہے, یا اس سے پہلے جو 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے اس میں آپ کی بائنگ پاور بہتر تھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم ریئلسٹک ہو کے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں تو میرے خیال سے یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. میں پرسنلزم اور فیوریٹزم پہ بلیو نہیں کرتا. میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے دور میں, کیونکہ کرٹیسزم ہمارا حق ہے, بالکل ٹھیک ہے, بنسبت پاکستان کا سٹیزن ہونے کے, ایک پیٹریوٹک سٹیزن ہونے کے, کرٹیسزم ہمارا حق ہے, یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ایگزیکٹلی ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے کہ عمران خان صاحب کا دور جو ہے نا وہ ذرا بھی اچھا دور نہیں تھا. اگر میں صرف کسی ایک پوائنٹ پہ ہی ہائی لائٹ کروں تو عمران خان صاحب کا منشور کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ تو کرپشن کا خاتمہ, وہ تو فلم ہو گئی نا, چلے فلم ہو گئی, وہ 35-55 والی بات ہو گئی, وہ تو فلم ہو گئی نا, کیونکہ اس میں سے تو 1% بھی, جو میں یہ بات کروں کہ ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آ کر کرپشن کا خاتمہ کریں گے. ٹھیک ہے, میرے پڑھے لکھے بھائی, آج کل ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے, آپ کھولیں کرپشن, ہاں کرپشن, ان کے جو دور کے اندر آپ کرپشن دیکھیں نا تو پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ کرپشن ان کے دور کے اندر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ایک بندہ جس کی پارٹی کا نعرہ یہی تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے آ کے, تو وہ جب اپنی پارٹی میں جب اس کو عہدہ مل گیا تو اس کے بعد اس کا کیا جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی رہی ہے سب آپ کے سامنے. اور اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک اوپر لیڈر چینج کر دینے سے نچلے جو ان کے پارلیمنٹ کے لوگ تھے یا جو ان کے وزراء تھے, جو ان کے مشیر تھے, وہ تو سارے وہی تھے نا, وہی تھے. تو ایک بندے کو اگر ایک چیز, آپ کے گھر کا اگر پنکھا خراب ہو جاتا ہے, الیکٹریشین کا کام ہے نا, آپ پلمبر لے کر آ جائیں, سوری ٹو سے ایک ایگزامپل دینی پڑ رہی ہے, لیکن اگر آپ پلمبر لے کر آ جائیں وہ ساری زندگی بھی لگا رہے گا نا, تو وہ الیکٹریشین کا کام نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سیاست عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. سوری ٹو سے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو بھی پاکستان کے حالات گئے ہیں, جب نواز شریف وغیرہ نے حکومت سنبھالی ہے, شہباز شریف نے دوبارہ حکومت سنبھالی ہے, پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگوں کو یہی میڈیا پر سنایا جا رہا تھا کہ پاکستان بس اب ختم ہے, اب ہماری ہر چیزیں بک گئی, ہماری اسٹیل ملیں بک گئی, ہمارا PIA بک گیا, یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی تھی نا. اب اس دور کے اندر ذرا سی بس ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اب آپ اپنے پاکستان کی GDP اٹھا کے دیکھیں, آپ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اٹھا کے دیکھیں, بلند ترین سطح پر ہے, بہترین ہے. اب آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی نا. جو گند عمران خان صاحب کے دور میں پھیلا وہ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایکسپیرینس بندے کا ہی کام ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ
नून लीग कोई बड़ी दूध की धुली है या उन्होंने कभी अपने दौर में करप्शन नहीं की है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक स्टेबिलिटी तो है ना पाकिस्तान में। अब कोई हमें आंखें तो नहीं दिखा सकता ना कि जी आपका मुल्क दिवालिया होने लगा, ये गरीब मुल्क हो चुका है। जहां तक रही बात महंगाई की, तो आप जरा एक बार एक कैमरा फेर के देख लें, ठीक है। यहाँ पे ये महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, ये शॉपिंगें पहले बंद हुई थी ना ही अल्लाह के फजल से अब बंद होंगी। जिसने जो चीज़ चाहिए, जिसकी जितनी ज़रूरत है, वो पहले भी कर रहा था, वो अब भी करता रहेगा। तो बस मेरा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह मुल्क चल रहा है उसको चलने दें। मेरा भाई मेरा ख्याल इस बात से मुत्तफिक नहीं है। आप इमरान खान की बातें सुन रहे थे, जिस तरह भाई ने बात की, मुत्तफिक है कि यही तरीकाकार है क्योंकि नौजवान है, आने वाली नस्ल है, इसने मुल्क को चलाना है आगे जाके। नहीं, इमरान खान साहब के ये हक में तो नहीं थे, लेकिन मैं इमरान खान साहब के हक में थोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के हक में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इमरान खान साहब की जब मैं हुकूमत में था उस टाइम हम भी स्टडी करते थे राबी, तो इमरान खान साहब ने स्टूडेंट्स के हक में बहुत थे। उन्होंने स्टूडेंट को लिए वजीफ़ा और उन्होंने हॉस्पिटल्स में जो मरीजों के लिए थे उनके लिए उन्होंने कार्ड दिया है, बिल्कुल, और ये उनके क्रेडिट पे बात है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए कार्ड दिया, लंगर खाने बनाए, जो रातों को सड़कों पे सोते पनाहगाहें बनाई, बिल्कुल ठीक, वो रातों को जो सड़कों पे सोते और वो पनाह गाँव में सोने लगे। और बाकी बात रही करप्शन की, वो सिर्फ करप्शन इमरान खान साहब के दौर में नहीं आई, जितनी सियासत चल रही है वो सब के दौर में करप्शन आती रही। और ये बात करते हैं करप्शन सिर्फ इमरान। जी भाई, आपके अपने साथ आए हुए हैं, वो आपसे निगेट कर रहे हैं। ये हम सब का हक है और हर एक का ये खूबसूरती है जमहूरियत की, बिल्कुल। लेकिन फिर भी स्टिल एक इख्तलाफ राय होने के बावजूद भी हम भाइयों में बड़ा प्यार, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। सियासी इख्तलाफात में आपस में इख्तलाफात नहीं रखने। इसकी बात को मैं सिर्फ एक काउंटर एक एग्जांपल से करना चाहता हूँ कि आप ये सामने कपड़े की शॉप है, आप एक कपड़े की शॉप में गए हैं, ठीक है। अब उसका मौकफ क्या है कि जी हम आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा दिखाएंगे। आप कपड़े गए हैं, वो भाई जलेबियां मंगवा लेता है, सर जलेबियां खाएं, इतनी जबरदस्त जलेबियां। वो भाई चाय मंगवा लेता है, सर चाय पी। आपके भाई मैं कपड़े लेने आया हूँ, इमरान खान साहब मैं करप्शन खत्म करने आया हूँ, मुझे सेहत कार्ड आप बाद में देना, चाय मुझे आप बाद में देना, जलेबियां आप मुझे बाद में देना। आपका जो पॉइंट था ना जिसके ऊपर आपने ये अपनी पार्टी बनाई थी, ऐसा तो कोई वजीर आज़म भी नहीं है जो करप्शन को खत्म करेगा और ना आएगा। नहीं, अभी तो इंडेक्स नीचे आने लग गया है, और नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी 2013 से 18 में, उसमें भी इंडेक्स नीचे आया, क्योंकि पहले की हुकूमत में भी इल्जाम थे जो कि पीपीपी की थी, वो कह रहे थे जी करप्शन बहुत है। इंडेक्स तो नीचे आ रहा है, ये हम बात नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे, ये भाई भी इस पे मुत्तफिक है कि ये इंटरनेशनल मीडिया जो है इस चीज को रिपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट करता है कि इंडेक्स नीचे आ रहा है। ऐसे ही है, देखें बिल्कुल ऐसा ही है। आप स्टैट्स उठा के देख लें, हमारे ऊपर आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट हर एक बंदे के पास है। मैं बहसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं अगर इस चीज को इतना जो है वो आवाम के सामने ला के रख सकता हूँ, तो आपके तो एक बंदा जिसने मेरे ख्याल से 5वीं मुश्किल पास की होगी, अब उसके पास भी स्मार्टफोन है, वो भी इंटरनेट पे सर्फिंग करके ये सारी चीजें देख सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भाई को बताइए जरा, फायरवॉल वगैरह का भी सीन तो है, उसमें तो नहीं तंगी होती थोड़ी सी, सिक्योरिटी इशू के लिए ठीक है वो बिल्कुल सही है। ये मेरे ख्याल से ये कि इन्होंने पहले इनिशिएटिव भी लेने लगे थे कि रात 10 बजे के बाद हम इंटरनेट बंद कर देंगे। अच्छा। तो इस चीज से भी मतलब आवाम के अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि मीडिया पर हमें काफी नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं, ज्यादा पॉजिटिव चीजें कम होती हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं। अभी ये जो आपने इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश में, ये जो मुल्क के अंदर जो आपने फसादात पैदा किए, ये जो जिन गरीब सिपाहियों को आप लोगों ने ये सब चीज क्या है, हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना, हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। हम अपने घर में भाइयों की आपस में अगर कोई चकबक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है आपस में, तो आप क्या घर की चीजें उठाना शुरू कर देंगे कि यार मेरी तरह से लड़ाई है, तू अगर मेरी बात नहीं मान रहा तो ये ले घर का शीशा तोड़ दिया। आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उमर अयूब भी बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी बात कर रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर वो कहते हैं हम जी फिर बंदूकें लेके निकलेंगे, हमें इजाजत दे दें, अमन का राग ना लापे बानी चेयरमैन। नहीं तो क्या कहेंगे? ये बंदूकें वगैरह लेके निकलना तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। इस तरह अगर बंदूकें आप लेके आएंगे सड़कों पे, या जो सोटियां वगैरह और सड़कों पे आग लगाएंगे, ये अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। इस तरह आप अगर सड़कों पे ऐसा काम करेंगे, मतलब इस बात से आप भी मुत्तफिक हैं कि इस तरह मुल्क नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं मुल्क चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे भाई कह रहे हैं इस्तेकाम ईमानदारी से नहीं, अब हर कोई ईमानदारी का राग तो नहीं लाफजा सादिक और अमीन, ना मैं आपको कह सकता हूँ ना आप मुझे कह सकते हैं। वो एक बंदे को कहा गया था, उसका भी पता चल गया कि गड़ी चोर है कि नहीं है। हुजूर की सुन्नत को आम करें, इस तरह मुल्क चल सकता है। अगर बिल्कुल प्योर ईमानदार नहीं हो सकते तो हुजूर के रास्ते पे तो चल सकते हैं ना, उस तरह तो हम अपने मुल्क को चला सकते हैं। करप्शन उस तरह तो खत्म हो सकती है, उनके रास्तों हुजूर के रास्तों पर जाके तो हम इस तरह कामयाब हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं कान पकड़ के कह रहा हूँ कि अपनी
हम मदीने की रियासत नहीं बना सकते मेरे भाई। सॉरी टू से, यहाँ पर क्लेम करने वाले बहुत लोग आए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एट द एंड जब आपने उन लोगों को अंदर से कंगाला है तो फिर निकला यही कुछ ही है। किसी भी मुल्क की जो तब्दीली है ना, या किसी भी कौम की वो जो तब्दीली है, वो तब आएगी जब हम खुद अपने आप को बदलें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक दूध वाला दूध के अंदर बैठ के पानी मिला रहा है और कह रहा है जी मेरे हुक्मरान चोर है, तो ऐसे तब्दीली नहीं आने वाली। बिल्कुल, आपको अपने बिल्कुल। आप से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पहले तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि हुक्मरान हम ही में से चुने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद को अकाउंटेबल करना होगा। अगर आपने अवाम में से कुछ ऐसे लीडर्स को चुनना है, ये वो नौजवान तबका है जिसको कहा जाता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागडोर इन लोगों ने संभालनी है। ये अपने लीडर से कितने नाखुश हैं ये आपने जाना। दीगर जो अवाम है उनसे भी बात करते हैं कि उनका बयानिया क्या है। इमरान खान की हुकूमत में और शहबाज शरीफ की भी 1 साल की हुकूमत हुई है, क्योंकि अगर वो इंटरिम हुकूमत निकाल दी जाए तो अब की 1 साल की हुकूमत तकरीबन होने वाली है फरवरी में। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, किस तरह मुल्क जा रहा है? यही है कि इमरान खान के दौर में गरीबों को जो ज़्यादा फायदा था। अच्छा, कैसे? ठीक है, कैसे क्या? जो गरीब लोग थे ना, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही थी इनकी निस्बत। अभी ये आए हैं, इसमें जो जिम्मेदार है भाई, हम खुद बेसिकली जिम्मेदार हैं। कबर निकाल के रख दिए, ना गंदम का रेट है, ना मकई का रेट है, ना अभी आलू का रेट है। वो फसल डैमेज है, फसल नहीं निकल रही है। इन्होंने अपने पास से क्या सब्सिडी दी है? सब्सिडी तो ये तो ऐलान करें, मतलब आप तक पहुंच नहीं रही है। कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ। हाँ जी, खादें महंगी, बिजली महंगी। खाद के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो हम बीज नहीं ला रहे हैं। क्या फायदा जब फसल ही तैयार होगी, फसल का बेड़ा गर्क होगा। अभी तक नहीं मेरी मार्केट में खाद अभी तक मिल नहीं रही, मतलब कि जो लोग स्टॉक कर रहे थे उसके बाद भी स्टॉकिया कमा रहे हैं, स्टॉकिया कमा रहे हैं, जिम्मेदार को कुछ नहीं मिला। तो उनके ऊपर एक्शन किस तरह लिया जाए? ये भाई पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, तो जिसका डंडा चल रहा है चल रहा है। आप लोग क्या करते हैं फिर? हल आप बताएं ना, आप लोग वोट देते हैं ना, बताएं हल आवाम को। हाल ये है कि ये सारे जितने भी है ना बाबे सरदारी, जब 60 ईयर से ऊपर चल जाता बंदा बच्चों जैसा हो जाता है। अच्छा, तो इनको चाहिए खुदारा ये छोड़े, किसी नए बंदे को आने दे। क्या कर रहे हैं? वोट हमने नून लीग को दिया है, इससे तो बेहतर हुकूमत इमरान खान की थी। अच्छा, जो हमें लेकिन वो कह रहे हैं महंगाई हमने कम कर दी है और स्टॉक मार्केट ऊपर ये जा रही ठेला है। लगाया हुआ है मेरा है, मैंने ठेला लगाया हुआ है, ठीक है। उसके अपना इमरान खान का हुकूमत में चले जाए तो मैं यहाँ पर समझ लो कि सहूलत थी। अब आ जाए तो आप मरियम नवाज शरीफ साहब कह रही हैं कि लाहौर को साफ करना है। लाहौर को क्या, आप पूरे पाकिस्तान को साफ कर रही हैं, जो अपने खजाने में भर तो रही ये है आपकी सारे। बात जिस तरह आप कर रहे हैं लाहौर को साफ करना, पूरे पाकिस्तान को साफ करना, वो आपको बेहतर नहीं लग रही सुनते हुए भी कि अगर लाहौर भी साफ हो जाता है? ये ठेले उठवा रहे हैं, ये ठेले उठवा रहे हैं। एक ठेला दे रहे हैं 1,80,000 रुपए में। अच्छा, ठीक है, 1,80,000 रुपए में दे रही है एक ठेला, जिसकी कीमत टोटल देखो 20 से 25,000 रुपए है। अगर इतने ठेले अगर बेचते हैं तो वो पैसा किधर जाना है? किसके पास ऊपर वाले पैसे जाने हैं? 1.5 लाख रुपया उनके अकाउंट में जाना है ना। तो ये जो गरीब आदमी जो 30 साल से 25 साल से 20 साल से बैठा हुआ है, वो कहाँ पर जाएगा? बच्चों का रोजगार कहाँ से आप क्या कमाएगा? वजीर आजम को क्या कहना चाहेंगे कि जी आप लोग सारे काम तो कर रहे हैं, हमारे तक नहीं पहुंच रहे? हम तो ना मुतमइन है अपने वजीर आजम से, ना वजीर आला से, किसी से मुतमइन नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? ये हमारा अगर मुल्क चल रहा है तो अल्लाह के सहारे पे चल रहा है। अल्लाह के सहारे पे चल रही है, अल्लाह के सहारे पे चल रहा है। अगर उनको आप देखते हैं ना, अगर हुकूमत को देखते हैं, अगर गरीब आदमी की एक जगह पे से रोजी रोटी उन्होंने खत्म करनी है ना, तो एक गरीब आदमी को सहूलत भी देनी है। यहाँ पर एक आप गाड़ी लोकल खड़ी कर दें, एक गवर्नमेंट की खड़ी कर दें, चलान उसका होगा जो गरीब आदमी होगा। वो जो गवर्नमेंट की गाड़ी बीच में सड़क में भी खड़ी होगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो कोई ना जवाब बना देंगे ना, हम इसलिए खड़े थे। इसलिए क्यों खड़े हैं? हाँ, महंगाई खत्म करने की बात करें, वो ये जवाब देंगे। गरीबों को मारे, गरीब का क्या करे? नहीं, महंगाई अभी लगा के खड़े, उनके ठेले उठा रहे हैं। ये 1 साल पहले की बात आपको बताऊं। महंगाई को क्या करें जब खत्म होगी? गरीब चोरियां करके महंगाई खत्म करे। जो महंगाई है उन्होंने खत्म की है, गरीब चोरियां करे क्या करे? बिजली के यूनिट्स पे हम आपको पैकेज दे रहे खुद मर जाए। हैं, बिजली के यूनिट्स पे आपको सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। कुछ भी नहीं। कल 2 दिन रेट वैसे बढ़ा दिया। 2 दिन हुए, कल मीटर उतार के ले गए हमारा। ये गरीब आदमी जब उसको काम नहीं करने देना, वो कहाँ से पैसे लाएगा? कोई देगा पैसे? किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी को रिलीफ मिल रहा है। बड़ा मुश्किल अपने मुल्क से मतलब जो ये दावे कर रहे हैं कि महंगाई कम कर दी है, अफरात ज़र पे बेहतर है, कुव्वत खरीद जो है ना बढ़ गई है लोगों की, मतलब निचली सतह पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे दिखावा है ही कुछ नहीं यार।
हर चीज़ डबल रेट पे है। गरीब आदमी का तो खाना मुश्किल हो गया, रहना मुश्किल हो गया है अपने मुल्क में, समझ बहुत मुश्किल हो गया। रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, कहाँ से करेगा, किराया कहाँ से देगा, बिल कहाँ से देगा, घर का सामान ही बेचेगा बेचारा, या कुछ झुमका बेचेगा या कुछ चीज़ ही बेचेगा ना। आवाम का ये कहना है कि इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो उसके फायदे हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, हम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। दीगर अवाम इस पर क्या बात करती है, उनसे भी जानते हैं। जी मेरा भाई, शॉपिंग करने आप आए हुए हैं, मतलब कि आपके पास बाइंग पावर है, आप खरीद सकते हैं चीज़ें। ये मुझे बता दें कि 1 साल की ये हुकूमत जो नून लीग की है, इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और इससे पहले की 4 साल की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें दोनों में क्या फ़र्क था? अब आपके लिए ज़िंदगी बेहतर हो गई है या फिर उस दौर में थी? ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि हम यहाँ पे शॉपिंग करने हैं, इतनी पेमेंट नहीं है कि हम बाहर निकल के हम परचेजिंग कर सकें या शॉपिंग कर सकें। हम नॉर्मल सिटीजन हैं, हमारे लिए इतना टफ कर दिया ना कि यहाँ पे हम इतना टफ हो गया कि एनवायरनमेंट इतना ओवरऑल टफ हो गया कि हम सिर्फ अपने घर के ही खर्चे जो मैनेज कर रहे हैं। बिजली के ऊपर तो उन्होंने सब्सिडी दी है ना, 250 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करें आपको यूनिट की प्राइस कम मिलेगी। विदाउट फ्रिज के मेरे घर का 7,000 रुपये बिल आया है। अच्छा, ठीक है, मैक्सिमम मेरी सैलरी 30,000 है। ठीक है, रेंट आउट है, मैं घर हूँ, ठीक है, रेंट पे कर रहा हूँ, बिल पे कर रहा हूँ, और अपने सिर्फ घर के लिए 3 टाइम का खाना मैं बड़ी मुश्किल से परचेज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने वो वादा किया हमसे, हम खा रहे हैं। बट ये जो नून लीग है ना, ये हमें ले गई है, बिल्कुल ले गई है बहुत से। ठीक है, वो तो कह रहे हैं हमने स्टॉक मार्केट बेहतर कर दी, और जो है ना मुल्क में कारोबार आ रहा है। सर, मुल्क में कारोबार वो कर रहा है जिसका कारोबार अप है, जिसका चल रहा था पहले, जिसका चल रहा था उनको डबल हो रहा है। अच्छा। जो नॉर्मल है वो और नॉर्मल हो गए, उनके लिए उठने का इन्होंने लक तोड़ दिया है। सीधी बात यह है कि लक तोड़ देता है, गरीब बंदा नहीं उठ सकता, वो ऐसा सीजन है। लेकिन जो पीटीआई थी अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमें उस पर कॉन्फिडेंस था हमारा कि वो पीटीआई कुछ मुल्क में करके जाएगी। अच्छा। लेकिन ये पीटीआई को उठने नहीं दे रहे। तो मतलब 4 साल में कुछ किया नहीं उन्होंने, 4 साल में कुछ हो नहीं सका, 4 साल में भी नहीं कर सके। बहुत से 4 साल जो थे ना, लेकिन हम इस उम्मीद से जीने लग गए थे कि अगर ये 4 साल टफ है ना, आने वाले जो हमारा आगे 5 साल होंगे कि इंशाल्लाह वो हम सुकून से रह सकेंगे। लेकिन वो हमारी उम्मीद उन्होंने तोड़ दी है। मतलब ये उम्मीद पे ही जो है ना आप लोग चल रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि उम्मीद आपकी जो है ना उसका मरकज जो है हमारी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है कि वो अगर वजीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा। ये बड़ी पुरानी हुकूमतें कर रहे हैं, इनके बाप दादा से ये चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये नई से नई नस्लें लेके आ रहे हैं। बता दें, जब 2013 में इमरान खान की हुकूमत बनती है केपीके में, तब वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे जो है विफाक में हुकूमत नहीं मिली, मुझे तो हुकूमत करना नहीं आती, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए हुकूमत करना। अच्छा हुआ हमें एक्सपीरियंस पहले हो गया। वो बात आपको मैं बताता हूं कि ये अगर वो 4 साल भी उन्हें हुकूमत मिली है, वो कुछ कर नहीं पाए, अगले 5 साल फिर इसी उम्मीद में गुजार दें हम। बस वो 4 साल में एक उम्मीद की जो किरण जागती है ना, वो ही बड़ी बात होती है। देखिए कि किसी पे उम्मीद का कंसेप्ट बनाना ही बड़ी बात है, इन पे कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, ये वो तरक्की, जिनके पास तरक्की है, जिनके पास पैसा है, ये सिर्फ उनको बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, बेनिफिट वाले को ही बेनिफिट मिल रहा है। टैक्स लग रहा है, ताजरान जो है वो बड़े बड़े वो इनसे लड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स ना लगाएं, टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं कारोबारी हजरात को कि जी आप टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा। वजारत खजाना जो है उनके ऊपर टैक्स लगा रही है, दीगर टैक्सेस आपके ऊपर कम लग रहे हैं, अमीरों के ऊपर ज्यादा लग रहे हैं। तो ये तो ना कि आपको ज्यादा तंग किया जा रहा है, अमीरों को तंग नहीं किया जा रहा। वो टैक्सेस की बात ये है कि टैक्सेस में से 80% कौन खा रहा है, ये सबको पता है। मैं यहाँ पे शो मेंटी में बात नहीं करना चाह रहा। टैक्सेस ये चाहे जितना मर्जी टैक्स कर दे, लेकिन बट उसका 80% जाना ही जाना है। 20% ये आम सिटीजन पे कौन खर्च करेगा? 20% के टैक्स पे हमारी पब्लिक को कहाँ पे सुकून मिलेगा? सबसे ज्यादा कर्ज IMF से लेने वाली हुकूमत इमरान खान की थी। अब वो कर्ज भी तो चुकाना है मेरा भाई, किसी तरह तो चुकाना है। मुल्क फिर गिरवी रख दे, क्या बात करेंगे आप? मुल्क गिरवी नहीं होता। नहीं, किस तरह करेंगे आप बता? ये तो अब टैक्स पे करना पड़ेगा ना, महंगाई तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपकी उम्मीद ने आपके ऊपर जो पानी फेरा है, जो इतने कर्जे लिए हैं मुल्क को चलाने के लिए और मुल्क में करप्शन को कम करने के लिए, करप्शन इंडेक्स ऊपर जा रहा था। अब क्या जवाब देंगे IMF वालों को जिनसे आप लोगों ने पैसे लिए थे? उनको कैसे वापस करने हैं? टैक्स तो लगेंगे आप पे भी, मुझ पे भी। वो हमारी आने वाली नस्लें भी पे कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आने वाली नस्ल ने भी पे करना है वो टैक्स। ये सिर्फ हमारे लिए एक
प्रोपोगंडा बनाया हुआ है कि टैक्स ले रहे हैं या हम कर्ज ले रहे हैं उसको पे करना है, तो ये सिर्फ हमारे लिए है। बुजुर्गों ये बताइएगा, जिस तरह भाई बात कर रहे हैं, मुल्क का निज़ाम बिल्कुल अफरा तफरी की जानिब आ गया है। एक वज़ीर आला उठता है केपी से, वो कहता है मैं मुल्क पर जो है ना यलगार कर दूंगा, विफाक पे आऊँगा, हमला कर दूंगा, मैं अपने बानी को लेके जाऊँगा। इस बात पर नहीं आ रहे कि मुल्क आगे चलाना है, मुज़ाकरात करें, मुल्क को आगे लेके चलें आपके मेरे लिए, और ये जो आवाम हमें देख रही है उसके लिए बेहतर काम करें। हाँ जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, बेहतरी के लिए काम करना है, एक दूसरे से मुज़ाकरात करने चाहिए और अच्छे तरीके से सियासी जमात को चलना चाहिए। ये अफरा तफरी जो है और एक सुबह उठ के और वफाक के ऊपर वो चढ़ाई करे, इसे अवाम पूरी नापसंद करती है। अच्छा, ये ठीक काम नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? वो भी तो कहते हैं जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इमरान खान मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएगा? अभी भाई बात कर रहे थे ना। नहीं, पौने 4 साल उसने हुकूमत की है, कहाँ ले गया मुल्क को? करप्शन और बढ़ गई, करप्शन, गोगी भाग गई, वो करप्शन करके वो उस्मान गुलजार जो है वज़ीर आला बना था, वो जनाब बेड़ा गर्क करके चले गए। तो इन लोगों ने किया क्या? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में इन लोगों को ये मीडिया पे ही है तूफान उठा हुआ और कुछ नहीं, बल्कि ये अली अमून गडनापुर को सजा देनी चाहिए। सजा देनी चाहिए। हाँ जी, इसको चले केसेस चल रहे, सजाएं उनको अदालतें देंगी। मुझे आप ये बता दें, मतलब अब मौजूदा हुकूमत का तकरीबन साल होने वाला है, अगले 2 महीने में फरवरी में साल हो जाएगा। हाँ जी। इस हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उससे आप खुश हैं या नहीं है? हाँ जी, खुश हैं। ये PIA पे जो पाबंदी लगी थी उसमें ये कामयाब हो गए हैं। बेहतरीन काम किया, उसको खत्म किया, बिल्कुल उसको खत्म किया। फिर मुल्क के अंदर जो महंगाई की एक लहर आई हुई थी उसको कंट्रोल किया है। अब ये काफ़ी हद तक महंगाई जो कंट्रोल है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ें कंट्रोल है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं। मेरा भैया आप बताइएगा, मुल्क में जिस तरह से भी बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको बाहर निकाला जाए तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ये बात कर चुके हैं इमरान खान है तो पाकिस्तान है। क्या ऐसी बात ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर बंदे का अपना नज़रिया है, हर इंसान का अपना नज़रिया है, हर बंदा अपने नज़रिए से बात करता है। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि पहले मुल्क को देखना चाहिए कि मुल्क किस तरीके से चल रहा है या मुल्क की बेहतरी किस चीज़ में है, उस बात को डिफेंस करना चाहिए। चाहे PTI वाले हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून वाले हैं या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें सबसे पहले मुल्क को आगे रखना चाहिए, बाकी बातों को पीछे रखना चाहिए। अगर जो चीज़ मुल्क के मफाद में अच्छी है वो हमारे लिए अच्छी है, बेहतरीन। तो मेरा भाई अब महंगाई की आप थोड़ी सी बता दें मुझे, सिर्फ एक चीज़, पहले आपके घर में 4 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी चलती थी, लोग अभी जो है ना बात करके जा रहे हैं कि हम 2 वक्त की रोटी कमाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही है? सर देखिए, पहले हालात तो बिल्कुल तंग थे, अब बेहतरी आ ही रही है। तकरीबन थोड़ी थोड़ी बेहतरी तो नजर आई है, सारों को नजर आई है। आटे की कीमतें कम होना, रोटी की कीमत कम होना, आटे की कीमतों की बजाय दूसरी बात यह है कि आप जो उनसे कंटेनरों पे लगे हुए आटे ले रहे होते थे, आटे के पीछे भाग रहे होते थे, वो जद्दोजहद खत्म हो गई है। दुकानों पे आटा फराहम हो रहा है, चाहे महंगा है लेकिन मिल तो रहा है ना। पहले तो ये था कि मिल नहीं रहा। अब जो चीज़ प्रोवाइड हो रही है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, इंसान को शुक्र करना चाहिए रब की ज़ात का कि यार अल्लाह ताला ने हमें कुछ अच्छा बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है, तो हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। जी मेरा भैया आप क्या कहेंगे, बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क? कोई भी नहीं जा रहा, तो कौन लेके जाएगा? कोई भी नहीं लेके जा सकता, कोई भी नहीं लेके जा सकता। किसको वोट दिया मेरे भाई ने? किसी को भी नहीं देता वोट, भी किसी को नहीं दिया। तो मेरा भाई आप तो फिर ऐसे ना करें, आपने वोट ही नहीं दिया। वोट देते तो फिर आप शिकायत करते ना, इसीलिए तो दिया नहीं। मतलब किसी पे यकीन ही नहीं है, नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा मुल्क? सारे चोर दे, कोई नहीं है, मामला कोई नहीं सोच रहे। नहीं इमरान खान नहीं सही, कोई भी नहीं ठीक, कोई भी नहीं सही, सारे चोर ने, सारे चोर हैं। गरीब बंदे का कोई नहीं है। अच्छा, और सब तो सवाल चलें जी। अब आप इस तरह बात कर रही है कि कानून की हुक्मरानी जो है वो अगर हो तो दोनों के साथ हो। मुल्क में 2 कानून हो नहीं होने चाहिए, अमीर के लिए भी वही कानून हो और गरीब के लिए भी वही कानून हो। अगर कोई और जो है इसमें आता है तो उसको कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। इमरान खान की भी अगर बात की जा रही है तो इमरान खान के क्रेडिट पे कुछ चीज़ें हैं जो कि तमाम लोग उसका एतराफ़ करते हैं। कोरोना में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और मुल्क को
लेके चले, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। सेहत सहूलत कार शुरू किया, साथ ही साथ दीगर मंसूबे शुरू किए, लेकिन एक जो चीज़ थी जिस बयानिए पर वो आए थे कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, वो उसको ख़त्म नहीं कर पाए। आवाम से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्शिद ये बताएं, रिक्शा लेके सुबह से निकलते हैं, आवाम जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पा रही है? आप अपने घर बार में जो तमाम चीज़ें वो अफोर्ड कर पा रहे हैं? महंगाई इस वक्त जो है ना, वज़ीर आज़म कहते हैं हमने कम कर दी है। आप मुझे बताएं आवाम का बयानिया क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, तो मैंने 600 रुपया पकड़ा, 400 रुपये ये रक्षा की दिहाड़ी है। अच्छा, है जी, दिहाड़ी पे काम तो कर। गैस इतनी महंगी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो गैस वाले वो कोई 330 रुपये डाल रहा है, कोई 320 गैस डाल रहा है। की कीमतों में कमी तो आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कमी आ रही है। कब आ रही है? हमारे लिए तो कोई अभी तक आई नहीं है। अच्छा, जो देख वो सारे अपना अपना रेट को गैस डाल रहे। हम तो मर गए, गरीब आदमी तो मार के रख दिया इन्होंने, पता नहीं क्या करेंगे। ये इन्होंने बस ये पुल बनाने पे इनको जोर लगाया हुआ, ये मेट्रो ट्रेन चला देनी, मेट्रो बस चला देनी, आवाम भाड़ में जाए। इनके चल रहे कारोबार, आवाम मर गई है। आवाम तो इनके कसों में पिसी गई, इनकी दुश्मनी आपस में इनकी पड़ी हुई है। वो यही आवाम बात है। तो मुझे मर गई। बताएं, आप रिक्शा चलाते हैं, जब कॉल देता है बानी चेयरमैन जेल में बैठा, कहता है मुल्क बंद कर दो, मुल्क कंटेनर लग जाते हैं, तब आपका क्या हाल होता है? ये इनकी आपस की लड़ाई, यही चीज़ जो है ना जिसमें आवाम पिस रही है, जिसमें गरीब आदमी पिस रहा है, उसको कमाने का मौका नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ कि यही तो बात बता रहा हूँ कि कंटेनर लग जाते हैं, हर रास्ता बंद कर देते हैं। वो सवारी हमने बैठाई है मसलन 200 रुपये में, और हमें तो वो पड़ जाए 500 रुपये में, पता नहीं किधर किधर से घूम के हमें ले जाना पड़ता है। तो मुल्क बंद करके चलेगा, कंटेनर्स की सियासत से मुल्क चलेगा, या फिर मुज़ाकरात करें, पीटीआई वाले जाएं या हुकूमत उनको बुलाए और बैठे, मुल्क को इकट्ठे लेके चलें, तब चलेगा? या फिर जो है ना हुकूमत एक तरफ मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जाए, मुआशी मुहाज पे लड़े, और एक तरफ सियासी मुहाज पे लड़ाई करे, क्या बेहतर है? मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आवाम की तरफ अपना तवज्जो करे कि आवाम गरीब आदमी किधर जाएंगे, क्या करेंगे। अगर गरीब ही नहीं रहेगा तो ये हुकूमत क्या करेंगे, खाक करेंगे, क्या अगर करेंगे? आवाम नहीं रहेगी तो हुकूमत किस पे करेंगे? किस पे रेक करेंगे? गरीब आदमी मर गया तो सरमायादारों पे करेंगे, तो सरमायादार इनको मार देंगे फिर। गरीब आदमी तो मर गया। गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि सरमायादारों की हुकूमत तो नहीं चल सकती, अगर इन्होंने चलानी है तो गरीब आवाम का सोचना होगा। गरीब आवाम इस वक्त पिस चुका है, वो अपनी रोज़ी नहीं कमा सक रहा है, अपना रोज़मर्रा की अशिया ख़रीद नहीं पा रहा है, और रोज़मर्रा के जो अमूर है उनको चला नहीं पा रहा है। आवाम से बात करते हैं मज़ीद। महंगाई की सूरत हाल क्या है? अब बेहतर हो रही है सिचुएशन, या इमरान खान के दौर में बेहतर? अब बेहतर हो रही है। वो शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं जी महंगाई सिंगल डिजिट में आ रही है, वो तमाम चीज़ें सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क़ुव्वत खरीद सही है? पहले ठीक है, पहले से ठीक है। जो हमारे किसानों भाइयों का कहना है, वो कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत में हम यानी कि बिल्कुल पहले बेहतर थे। अच्छा, ठीक है, अब हम मुश्किल में हैं। ठीक है, जो इधर का लाहौर का यानी कि माहौल है, उसके मुताबिक तो ठीक है, लाहौर के मुताबिक ठीक चल रहे हैं। मेरे भाई आप बताओ, महंगाई की सूरत हाल ठीक है मुल्क में? आप सही रोजगार कमा रहे हो? पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। नहीं, इमरान खान इन्होंने पिंडों ले आया ते उन्होंने कहते ने इमरान खान चोर है। चोरी का कोई चीज देखी है तो ओदी? बताए जी, कोई चोरी की चीज देखी है? ताजत पढ़ने वाला बंदा जिन्हों तू कह चोर कह रहे ताजत कौन? मैं उसनु बचपन तो जानना। गल कर मेरे नाल नवाज शरीफ नु की थी ओदा प्यो 14 रुपये तनख्वाह लैने वाला बंदा है। तो मतलब शहबाज शरीफ की हुकूमत से आप मुतमईन नहीं है? आप चाहते हैं कि मैं कह रहा उन्होंने घर दे नाल गाड़ सी कि मैं गरीब है गाली भी है की गल मैं मेरे कीड़े पे थी मैं तरक्की नहीं की थी। नहीं, वो तो कहते हैं हमारे सारे मैं फिर जाके अमीर होवांगा। घर दे नान घर ने हाली भी खाला दे घर दो मेरे नान ने। अच्छा, की गल मेरे कीड़े पे ने जिन्हें मनु अल्लाह नहीं दिंदा है। तो मतलब वो आप कह रहे हैं वो करप्शन मैं चोर नहीं कह रहा, मैं चोर नहीं क्यों ना उन्होंने किया ना उन्होंने किया चोर। वो अदालत उत्थे है जिहड़ी ओदा फैसला। मेरा भाई आप बताओ, मुल्क में महंगाई अब सही है, कमी हो रही है कि नहीं हो रही? अभी तो फिलहाल महंगाई ज्यादा है। वज़ीर आज़म जो कहते हैं हमने महंगाई सिंगल डिजिट में ले आए हैं, तो वो उनके सारे जो दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं, या फिर समझ नहीं आ रही आवाम को, आवाम तक वो महंगाई कम हो नहीं
होगी यार नहीं। भाई मैं एक से ना पर्सनली बात करूंगा। जी जी आप रोजी कमाने के लिए आए हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही ये निज़ाम चलाई जा रहा है, ना नवाज शरीफ ने चलाना है, ना अच्छा। शहबाज शरीफ ने चलाना है, ना ठीक है। इमरान खान ने चलाना है। आप करोगे तो खाओगे, जो मिल रहा है नहीं, शुक्र मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, आप मेहनत करेंगे तभी कमाएंगे। अल्लाह का असूल यही है। अल्लाह का पसंदीदा दोस्त वो है जो कि मेहनत करके हाँ, कमाए, मेहनत कर- लेकिन मेहनत करने के लिए कारोबार भी तो होना जरूरी है, कारोबार है। जॉब्स होना जरूरी हाँ, है, बिल्कुल। वो लोगों को मिल रही है। हाँ, वो मुझे बताएं, जो अभी हुकूमत चल रही है वो बेहतर नहीं है, जो पहले थी इमरान खान की हुकूमत वो बेहतर थी। मैं ना खुद मुस्लिम लीग हूँ। जी जी, नून लीग के आप? नून लीग के हूँ। ठीक है। मैंने बहुत दुआ की अल्लाह करे ये पार्टी आ जाए दोबारा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं आई। कंट्रोल नहीं आई। वो तो आई। कहते हैं हम कोई जहाँ पर बिल 26 बिल नहीं मान आ रहे। बिल हम कहाँ से दें? माड़े बंदे गरीब बंदे जो मजदूरी करने वाले वो बिल कहाँ से दें इतने ज्यादा? किराए पे हमारे घर है। वो तो आगे से ये कह देते हैं जी जो टैक्स लिया है IMF से, जो कर्ज लिया है इमरान खान ने, उसको पूरा करने के लिए हमें गरीब वो पे हमारे टैक्स से लगाने पड़ेंगे। हमारे से निकालना है, गरीब बंदे से निकालना है। हम वो तो यही गरीब कहते हैं, हैं, टैक्स जो पे करना रात है। को कमाते हैं वो बच्चों को जाके हमने खिलाना है। बिल तारे रेडी लगा रहा था, उसकी रेडी भी उठा के जा रहे हैं। 8,000 10,000 जुर्माना है, वो 5,000 उसकी सेल हो आएगी। ये शेर एक दफा फिर आ जाए, लेकिन कोई इन्होंने नहीं। लेकिन शेर आ गया, लेकिन शेर ने आपके लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा अब हूँ, आप क्या चाहते हैं कि क्या महंगाई करेंगे? कंट्रोल करें ना। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं जी घी, आटा, सब्जियाँ, कौन सी चीजें सस्ती हैं आप बताएं मुझे। नवाज शरीफ कहता है जी कंट्रोल करने जाते हैं हम महंगाई को, मुआशी इस्तेहकाम लेने जाते हैं, वहाँ से एक कॉल आती है अडियाला जेल से, मुल्क बंद कर दो। वज़ीर आला KP निकल आता है, फिर इस्लामाबाद बैठ जाता है, कारोबार मुतासर होता है, वो बात कर देते हैं। ओ यार मेरा भाईजान फिर यही करे, गरीब बंदे को सारे को इकट्ठा करे, अच्छा। एक समुद्र में शिप में डाल कर डोब दे इनको। वैसे तो हम मर ही रहे हैं, सीधी तरह मार दे फिर हमें। तो फिर ये मुल्क पे हुक्मरानी कैसे करेंगे जब वो वहाँ भी नहीं होगी? मेरा भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है। अवाम का तो अवाम कोई हुकूमत को पसंद नहीं करती, कोई इमरान खान पसंद नहीं करते, ना नवाज शरीफ को पसंद करते। कैसे ठीक चल रही है? सुन तो ले, इमरान खान ने जो भेजा ना, ये हुकूमत काट रही है, ये हुकूमत बिल्कुल ठीक है। ये हुकूमत ठीक चल रही है जी? सही, ये हुकूमत ठीक नहीं चल रही थी। नहीं चलती भी? नहीं सही। ये गरीब मजदूरी करेगा, मंगेगा, उसने के पैसे हुकूमत लूट रहेगा, पुलिस को लूट रहेगा, गरीब मंगेगा उसको पुलिस लूटेगा। 10,000 15,000 जो भी पुलिस है, गरीब कानूनियत है, पुलिस का भी कल्चर खराब है। वो कहते हैं हमें पुलिस ने जो है ना रिफॉर्म्स लाएंगे, पुलिस को बेहतर करेंगे, कुछ नहीं हुआ। नहीं सही, कोई उसको लिए कोई मन मर्जी इस हुकूमत में ना मन मर्जी करिए। खान साहब की हुकूमत में उनको बिल्कुल इजाजत मन भी नहीं मर्जी दी, करेगा। मन मर्जी। मैं गरीब के साइकिल आया था, उसके मजदूरी करेगा साइकिल से साथ, वो साइकिल मेरे लूटाएगा, मैं ताला लगाएगा, वो साइकिल ही लूटाएगा। मैं गरीब से साइकिल से मजदूरी करे, वो भी लूटाएगा। नवाज शरीफ हुकूमत करे, शहबाज शरीफ हुकूमत करे, जरदारी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, अवाम के जो बुनियादी मसाइल है वो जूं के तू हैं। कहा तो जाता है कि महंगाई को कम किया जा रहा है, कहा जाता है कि महंगाई कम होने से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, अफरात ज़र बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के ज़खायर बढ़ रहे हैं, मुल्क में गैस निकल रही है, लेकिन ये जो चीज़ है उससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये आपने जान लिया कि आवाम बिल्कुल भी इस हुकूमत से खुश नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ जहाँ पर देखने को मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है और जो इमरान खान के नस्बुल ऐन की बात की जाती है या उनके नज़रियात की बात की जाती है, उस पर लोग एतमाद रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो मुल्क बेहतरी की जानिब जा सकता है। इसी वजह से नून लीग की हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को ये इस्तेहकाम लाना होगा, सियासी इस्तेहकाम, साथ ही साथ मुआशी इस्तेहकाम, और इस बड़े चैलेंज का सामना उनको है कि उनको परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर उनकी पिछली हुकूमतों ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, अगर बात की जाए 2013 से 2018 की या उससे पहले की हुकूमतों की बात की जाए, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो ये वक्त है कि अब वो हुकूमत में रहते हुए तमाम लोग, तमाम इत्तेहादी जमात मिलकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करके जाएं, हमारी आवाम के लिए कुछ बेहतर करके जाएं। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।